One face of a prism of refracting angle 30 degree and refractive index √2 is silvered. What angle must a ray of light fall on the unsilvered face of the prism so that after refraction into the prism and reflection at the silver surface, it retraces its path. This is the question. Now read the question in by part. One face of a prism of refracting angle. What is meant by refracting angle? That is nothing but your angle of prism. A is equal to, यहाँ पे क्या लेंगे? Angle A is equal to 30 degree. This is your refracting angle. Now second part, and refractive index of prism material mu is given, that is √2. Is silver, means one face of the. Now the question is, at what angle? At what angle must a ray of light fall on unsilvered face? Unsilvered face पे लाइट रे कितने डिग्री पे जाएगा कि वो आपका क्या हो जाएगा, रीबाउंस हो जाएगा, क्योंकि ये सिल्वर है, इसके उधर लाइट नहीं जाएगा तो वो रिट्रेस करेगा पाथ, है ना। तो कितने डिग्री पे ये जाना चाहिए? When a light will incident at normal to the surface, it will retrace its same path, है ना। तो इसका मतलब कि इस फेस पे जो रे हमको जो इंसिडेंट करेगा वो इस फेस का नॉर्मल होगा, तो यानी कि ये हमारा नॉर्मल हो गया। थोड़ा सा और पिक्चर बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, यानी कि जो इंसिडेंट रे है हमारा ऐसे जा रहा है। ये हो गया इंसिडेंट रे PQ और ये हो गया इंसिडेंट रे QR which is incidenting on the silver face, so ये QR हो गया, so this is must be equal to 90 degree। यही कंसेप्ट हमको लेके चलना है। ये फिगर बना लिए, ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया हमारा, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये कितना होगा बताइए? ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। ट्रायंगल AQR, angle Q is equal to 60 degree because sum of the triangle is always equal to 180 degree। ठीक, व्हाट इज द नॉर्मल? अब ये नॉर्मल जो है इस फेस का नॉर्मल है, AB फेस पे जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल से ये रे कितने डिग्री पर है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? हाँ, साइन refractive index of the prism material, refractive index is equal to sin I upon sin R। ठीक है, refractive index कितना है √2, तो that is 1.414 और √2 भी रख सकते हैं, अब ये रखिए √2 as it is। now what is angle of incidence? ये हमको निकालना है जब हमको रिफ्रैक्शन एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तो sin I अपॉन sin ऑफ 30 डिग्री, sin ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 1/√2, 1/2, so this is 1/√2 is equal to sin I। So angle मेजर हो गया ना, that is equal to I is equal to second problem। A 60 degree prism has a refractive index of 1.5। calculate number 1 the angle of incidence of minimum deviation
deviation. Second, the angle of minimum deviation. The angle of emergence of light at maximum deviation condition. And fourth is angle of maximum deviation. कल हमने आप लोगों को बताया था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 is equal to 90 degree, then the deviation will be maximum. इंसिडेंट, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया. अब इंसिडेंट से एंगल निकालना है. तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, what is Snell's law? Sin I upon sin R is equal to refractive index of glass upon refractive index of air. तो एयर का हमेशा 1 होता है तो हम क्या लिख देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख देते हैं. ठीक है. तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका हो जाएगा म्यू ए sin I is equal to म्यू जी sin R. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है कितना निकाले थे? 30 डिग्री. और म्यू जी पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन एज 1.5. तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो निकाल लीजिए. ये 1 होता है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा? sin इनवर्स ऑफ 3/4 मींस 0.75. कितना भी आप निकाल देंगे ना sin, that is also full mark. And sin inverse of 0.75 is nothing but your 49 degree. तीसरा क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसी का नेक्स्ट पार्ट. ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया. नाउ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर्मूला del m is equal to I1 plus I2. Del m plus A is equal to I1 plus I2. So A is known, I1 and I2 are known. So it is del m is equal to 2I minus of A. 2I, I is how much? Angle of incidence 49 degree. So 49 into 2, 98 minus angle of A is 60 degree. That is 38 degree. Angle of minimum deviation will be 38 degree. The angle of emergence of the light at the maximum deviation. For figure again. Experiment. It has been seen that as we go on increasing the angle of incident, the angle of deviation go on decreasing. And at a point, there is one point where for the angle of incident, the angle of deviation is minimum. And after that point, again, if you go on increasing the angle of incident, the angle of deviation again go on increasing. ठीक है. तो इसको ड्रॉ करने के लिए फॉर्मूला ये है कि हम सबसे पहले हमने 0 डिग्री पे लिया है, इसके प्लेन में लिया है. जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इसको बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा. ठीक है. तो अब यहां से देखिए, यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस पे आप नॉर्मल बनाइए. और यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पे फिर से एक P Q R. तो R पे भी जब नॉर्मल आप बनाएंगे, ये दोनों एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे. यहां ये ट्रायंगल हो जाएगा QR से O. जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म होता है. ठीक है. तो ये एंगल क्या है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. और ये एंगल क्या है हमारा? एंगल ऑफ इमर्जेंस E है. और ये एंगल हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज I2 है. ठीक है.
तो यहां पर मिनिमम डेविएशन कंडीशन में I1 R1 R2 भी बराबर हो जाएगा और I1 और I2 भी बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम ये I2 ले लिए, ये हमारा I1 ले लिए और ये R1 और R2 ले लिए। अगर इससे और इससे देखेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये R1 एंड R2। अब यहां पे आप लगाइए, फिर स्नेल्स लॉ लगाइए। यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, इस कंडीशन में जब ये हमारा अलोंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल जा रहा है, तो ये एंगल कितना है हमारा साइन आई, कितना है साइन आई का वैल्यू कितना है यहां पर 90 डिग्री। ये क्यों? क्योंकि इस फेस के अलोंग में रे जा रहा है और ये फेस के परपेंडिकुलर ये हमारा नॉर्मल है, यानी रे और नॉर्मल के बीच में हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू तो साइन आई हमारा 90 डिग्री हो गया। रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है यहाँ पे साइन आई इज इक्वल टू म्यू वी इनटू साइन आर साइन आर। तो और ये क्या है हमारा 1.5 टाइम्स ऑफ ये साइन आर हो गया। यहाँ पे आर निकालने की जरूरत नहीं है कि आर कितना आया है, ये यहाँ पे नीडेड नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 90 अपॉन साइन 90 अपॉन 1.5 हो जाएगा। ये साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5, इट इज 0.67 ये आएगा। तो आर विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.67 sin inverse of 67. So R will be equal to 42 degree. R2 is equal to A. तो अगर ये 42 डिग्री होगा तो R2 कितना हो जाएगा 60 माइनस 42 डिग्री, दिस विल बी योर 18 डिग्री। मिनिमम डेविएशन कहाँ लगा है, मिनिमम डेविएशन से दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन नहीं है ना। नाउ इफ I2 इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, अब इसको हम इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, then from the Snell's law again, shine of I2 upon R1, shine of I2 upon shine of R2 will be equal to refractive index of glass. So sin I2 is equal to 1.5 times of sin R2, and what is R2? 18 degree. So 1.5 into sin 18 degree is equal to, so this will be equal to sin 18 degree, और I2 will be equal to sin inverse of this one. Sin inverse of 1.5 into sin of 18 degree. This will be the your I2 का वैल्यू हो जाएगा। हम ये इसलिए निकाल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आप लोग एग्जामिनेशन में नहीं आप लोग के पास लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रहेगा और नहीं आप लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो इट इज
टाइम चेक 28 डिग्री आया। ये sin 18 का वैल्यू रख के ये निकाला है कि I2 is equal to 28 डिग्री आया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रे डायग्राम एंड फॉर्मूला फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द लेंसेज फॉर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये रह गया आप लोग का ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स।